بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ایک سوداگر اور چور کا دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک غریب اور مسکین مشخص مزدوری کی تلاش میں ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے کسی شہر میں کچھ کام مل گیا اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگا تاکہ کچھ رقم جمع کرے۔ اچانک اسے مزدوری سے جواب مل گیا۔ اس نے ادھر ادھر کام کی تلاش کی لیکن کوئی کام نہ ملا، اس لیے مجبور بیٹھ گیا اور اپنی جمع کردہ رقم خرچ کرنے لگا اور دل میں کہنے لگا، پردیس میں زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے، میری جمع کردہ رقم جلد ختم ہو جائے گی اور دوبارہ تنگ دست اور تہی دست ہو جاؤں گا۔ اب ماہ رجب شروع ہو گیا ہے اور میرا نام بھی رجب ہے جو عمدہ اور نیک فعال ہے، بہتر ہوگا کہ اپنے شہر لوٹ جاؤں اور باقی ماندہ رقم خرید و فروخت میں لگا دوں اور اپنے دوستوں کے ہمراہ آرام سے رہوں۔ رجب نے اسی رات اپنا سامان باندھا اور رقم بھی اس میں چھپا کر ایک گٹری بنائی۔ اس کے بعد اپنے ساتھی سفر کے پاس گیا جو اس کی طرح مسافر تھا اور اکٹھے ہی کرایہ کے مکان میں رہتے تھے۔ رجب نے اپنے ساتھی کو خدا حافظ کہا اور شہر کے باہر کاروان سرائے میں جا کر قیام کر لیا تاکہ دوسرے دن صبح قافلہ کے ہمراہ اپنے وطن روانہ ہو۔ وہ رات کو دوسرے مسافروں کی طرح کاروان سرائے کے صحن میں اپنی گٹری کے پاس بیٹھ گیا اور مسافروں کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا کہ اتنے میں اس کی نظر دیوار پر پڑی جہاں لکھا تھا، سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رجب نے اپنے دل میں کہا، خوب سچ کہتے ہیں، یہاں مسافروں کی بھیڑ ہے، قلیوں سوداگروں بیگانوں اور اپنوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ اگر سرائے کے مالک کی 40 آنکھیں ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی تمام لوگوں کو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ چور بھی سوداگروں کے لباس میں پھرتے ہیں۔ رجب اپنی جگہ بیٹھا تھا اور دوسروں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اسے نیند آ رہی ہے۔ اس نے گٹری اپنے قریب کھینچ لی اور اس پر تکیہ لگا لیا، لیکن اس نے سوچا کہ میں اس طرح صبح تک نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے گٹری کی رسیاں اپنے ہاتھوں سے باندھ لیں اور اس کے پہلو میں لیٹ کر سو گیا۔ صبح سویرے جب قافلے کی روانگی کا وقت ہوا تو جب بھی اٹھ بیٹھا، اس نے دیکھا کہ گٹری کی رسیاں تو اس کے ہاتھوں سے بندی ہیں لیکن گٹری کا کچھ اتا پتا نہیں ہے، کیونکہ کسی چور نے رسیاں کاٹ دی تھیں اور گٹری لے گیا تھا۔ رجب اپنی آنکھیں ملنے لگا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ خواب میں نہیں ہے بلکہ بیدار ہے اور چور اس کی جمع پونجی لے گئے ہیں۔ وہ ڈرا اور فریاد کرنے لگا، اے لوگو، کوئی شخص میری گٹری لے گیا ہے، میری رقم چلی گئی ہے، میری گٹری میں 1000 درہم تھے، ہر سرائے کا دروازہ بند کر دو، میں سب کی تلاشی لوں گا۔ بعض لوگوں نے یقین نہ کیا اور کہنے لگے، ممکن ہے یہ خود چور ہو اور چاہتا ہو کہ افراتفری پیدا کرے، لیکن جن لوگوں نے اسے رات کو دیکھا تھا انہیں یقین تھا کہ گٹری چور ہی لے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسے دیکھ لیتا تو ضرور پکڑتا، لیکن سب لوگ اپنے کام اور آرام میں مصروف تھے۔ سرائے کے مالک نے بھی لکھ رکھا تھا، سامان کی حفاظت اور دیکھ بھال مسافر کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رجب نے مسافروں کا سامان اچھی طرح دیکھ لیا لیکن گٹری کا کوئی نشان نہ تھا، اس لیے اہل قافلہ کہنے لگے، اکثر ایسا اتفاق ہو جاتا ہے، اب زیادہ غم نہ کرو، رقم دوبارہ مل سکتی ہے اور سامان دوبارہ خریدا جا سکتا ہے۔ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ کسی گاڑی کے نیچے نہیں کچھ لے گئے۔ سامان کا چوری ہونا بھی ایک سبق ہے، اس کے بعد اپنے حواس جمع رکھو گے، جب رقم زیادہ ہوتی ہے تو اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ ہم رستہ میں تمہاری مدد کریں گے تاکہ اپنے شہر پہنچ جاؤ، لیکن رجب نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا تھا، اس لیے کہنے لگا، نہیں، اپنے گھر اور شہر خالی ہاتھ لوٹنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے سفر کا پہلا قدم غلط ثابت ہوا ہے، میں یہیں رہوں گا تاکہ اپنی رقم تلاش کروں۔ جب قافلہ نے حرکت کی تو رجب نے دوسری مرتبہ اہل قافلہ کا ساز و سامان دیکھا، لیکن اس کی گٹری کا کوئی نشان نہ تھا، اس لیے اکتا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انہیں خدا حافظ کہا۔ وہ نہایت پریشان تھا کہ اب کیا کروں گا اور اپنی زندگی از سر نو کینے شروع کروں گا۔ رجب شہر کی طرف لوٹا، لیکن اس کا دل نہ چاہتا تھا کہ اپنی جائے رہائش پر لوٹے۔ وہ اپنے دوستوں کو کل رات خدا حافظ کہہ چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ میں انہیں کس منہ سے کہوں گا کہ اپنی پہلی منزل پر گٹری کی حفاظت نہیں کر سکا اور میری ایک عرصہ کی کمائی ضائع ہو گئی ہے، شاید اس طرح میرا نزاق رہے، اگر میں سابقہ ٹھکانے پر گیا تو دوسروں پر بوجھ بنوں گا، جبکہ ان کی زندگی مجھ سے بھی بدتر ہے۔
वो गमगीन और गमज़दा चल रहा था, लेकिन इसके पांव आगे नहीं बढ़ते थे। इतने में वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया, जहां उसने इस शहर में आते वक्त पहली रात गुजारी थी। वो बेइरादा दाखिल हो गया। वो थका मांदा था, इसलिए एक फटी पुरानी चटाई पर बैठ गया जो एक कोने में पड़ी थी। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। चूंकि हर तरफ खामोशी थी, इसलिए जल्द ही उसे नींद ने घेर लिया और वहीं लेट गया। लेकिन अभी वो ख्वाब और बेदारी की हालत में था कि असा के तक तक की आवाज से उठ बैठा। ये एक नाबीना सौदागर था जिसको रजब ने कई मर्तबा इस शहर में देखा था। नाबीना हौज के किनारे खड़ा हो गया और कहा, ए भाई, ए बहन। चूंकि नमाज का वक्त ना था और रजब एका के अलावा कोई शख्स वहां ना था, इसलिए उसने अपने दिल में कहा, सौदागर क्या चाहता है? शायद रकम मांगता होगा, इसके अलावा इसका यहाँ क्या काम है? रजब ने कोई जवाब ना दिया। इतने में सौदागर ने दोबारा अपना असाज मैन पर मारा और कहा, कोई शख्स यहाँ मौजूद है? रजब फिर भी खामोश रहा और सोचने लगा, नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अगरचे रजब यहाँ मौजूद है, लेकिन वो तो खुद फूटी कौड़ी का मुहताज है। जब सौदागर ने महसूस किया कि यहाँ कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो दालान की तरफ बढ़ गया जहाँ अक्सर बेघर मुसाफिर रात बसर करते थे। वहां पहुंचकर भी उसने लोगों को आवाजें दी और कहा, ए भाइयों, कोई शख्स मौजूद नहीं है जो मेरी रहनुमाई करे और रास्ता बताए। रजब ने अपने दिल में कहा, मालूम होता है सौदागर इस जगह से वाकिफ है। अगर ऐसा ना होता तो सीधा दालान की तरफ ना जाता। मालूम होता है उस वक्त रात को किसी खास गर्ज और मकसद के लिए आया है। ये भी नहीं हो सकता कि शहर और कूचों को छोड़कर सौदागरी के लिए मस्जिद में आया हो। शायद इसका कोई खास मकसद होगा। रजब ने चाहा कि उठकर उसकी मदद करे। जो नहीं रजब वालान के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि नाबैनब भी लोगों को आवाजें दे रहा है और कह रहा, किया है, यहाँ कौन सोया है? मुझे जाए नुमाओ ला दो। रजब ने दिल में कहा, बस बेचारा नमाज पढ़ना चाहता है, बेहतर होगा कि उसकी मदद करूं। रजब भी बगैर आवाज दिए दालान में पहुंच गया और चाहा कि नाबीना के सवाल का जवाब दे, लेकिन किसी मसलहत की वजह से खामोश रहाना। बेटा ने दोबारा कहा, ये कौन है जो सांस ले रहा है लेकिन जवाब नहीं देता? रजब डर गया और अपने आप से कहा, अब जबकि नाबीना सख्ती से बात कर रहा है तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि इसके करीब जाऊं, इसलिए अपना सांस रोककर सुतून के किनारे खड़ा हो गया। सौदागर कुछ आगे बढ़ा और कान खड़े कर दिए, लेकिन उसे कुछ सुनाई ना दिया। जब उसे यकीन हो गया कि दालान में कोई शख्स मौजूद नहीं है, तो वापस लौटकर दालान का है दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा को अपने असा के सहारे रोक दिया, ताकि अगर कोई शख्स दरवाजा खोलने के और अंदर आए तो असा के गिरने से खबरदार हो सके। नाबीना आगे बढ़ा और मस्जिद के मिहराब के करीब आ गया और निहायत तेजी से संगरेजों की थैली और चंद फटी पुरानी कुताबी ताकचा से उठाएं और फर्श पर रख दी और पिलास की मदद से फर्श से ईंटें अखटरने लगा, जिससे छोटा सा गड्ढा बन गया। नाबीना ने गड्ढे से एक चमड़े की थैली निकाली और जेब से कुछ निकाल कर थैली में रख दिया और दोबारा गड्ढे में डालकर इस पर ईंटें और फर्श बिछा दिया और फर्श के कोनों को अच्छी तरह देख लिया। नीज किताबें और दूसरी चीजें और बिछा दिया और भी ताकचा में रख दी और कुछ देर बैठकर दालान में आ गया और खामोशी से लेट गया ताकि अच्छी तरह समझ ले कि यहाँ पर कोई शख्स मौजूद है या नहीं। जब इसे पूरी तरह तसल्ली हो गई तो जिस रास्ता ने आया था उसी पर वापस चला गया। जब सौदागर चला गया तो रजब कई तरह के वसवसों में डूब गया कि जाकर देखे कि थैली में क्या चीज है। वो आगे बढ़ा और उसी तरतीब से संगरेजों की थैली और किताबें एक तरफ रख दी और निहायत एहतियात से फर्श की ईंटें अखीड़ कर एक तरफ रख दी और थैली गड्ढे से निकाल ली। इस थैली में 13 छोटी छोटी थैलियां मौजूद थीं जो सबकी सब रकम से भरी थीं। रजब ने थैली बगल में दबाई और फर्श को उसी तरतीब से हमवार कर दिया और मस्जिद के पिछवाड़े जा पहुंचा जहां हर तरफ खामोश थी। इसने रकम गई तो देखा कि इसमें 1300 दीनार मौजूद हैं, इसलिए कहने लगा, ये रकम तो मेरे असासा के ऐन मुताबिक है जो चोर ले गया है। मेरी गठरी में भी 1000 दीनार नकद और दूसरे सामान की कीमत 300 दीनार थी। रजब सोचने लगा कि अल्लाह ताला ने मुझ पर रहम किया है और इस रहमत के फरिश्ता के जरिए मेरी रकम वापस मिल गई है। लेकिन नहीं, अगर ये सौदागर गरीबी फरिश्ता होता तो उसे फर्श में दफन न रकम मिल नहीं। अगर ये करता बल्कि मुझे आवाज देता और कहता, और जब ये रकम ले लो, हाँ अब मुझे क्या करना चाहे।
अगर ये रकम लेता हूँ तो उसे लौटाने के लिए मुझे काफी वक्त की जरूरत होगी और ये निहायत जुल्म होगा कि नाबीना सौदागर की रकम ले लूं। वो बेचारा सौदागरी करता है और मैं इसकी रकम लेकर भाग जाऊं। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना होगी। हाँ, अगर ये रकम बतौर कर्ज ले लूं तो कैसा होगा? वो तो सौदागर है और लोग उसे रकम देते रहेंगे, लेकिन मैं तो सौदागरी भी नहीं कर सकता। मुमकिन है इसकी जुमा पूंजी और भी हो, जिसे अपने घर या किसी दूसरी जगह छुपा रखा हो। बहरहाल ऐसा मालूम होता है कि इसे किसी पर इतिमाद नहीं है और न ही उसे कोई इमानतदार मिल सका है, इसलिए अपीर या छुपा देता है। बल्कि मैं इस रकम का ज्यादा मुस्तहिक हूँ। नीज कर्ज लेना गुनाह भी नहीं है। अगर मैं इसके पास जाकर कर्ज मांगता हूँ तो मुझे साफ इनकार कर देगा। बस सरदस्त बगैर इजाजत रकम ले लेता हूँ और जब मेरे पास ज्यादा रकम होगी तो इसे तलाश करके लूटा दूंगा। रजब ने थैली बगल में दबार भी थी। वो आगे बढ़ा और अपने आप को तसल्ली देते हुए कहने लगा, मेरे लिए इस मामला का फैसला इतना जल्द मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला ने सौदागर को इसलिए भेजा है कि मेरी मदद करे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे थका दिया था और मस्जिद में बिठा दिया था ताकि अपना माल हासिल कर लूं। हाँ, जब कोई शख्स बुराई करता है तो खुद शैतान बन जाता है और अपने आप को धोखे देता है। इस तरह रजब ने भी अपनी दिलसोजी और परेशानी के बावजूद अपने आप को तसल्ली दी और अलिफ वहां से चल दिया। इसने 300 दिनार से अपना जरूरी सामान खरीदा और 1000 दिनार अपने लिबास में छुपा लाए। अब वो अपनी साबिका मंजिल पर ना गया और इस शहर से निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन फिर भी अपने काम से सख्त शर्मिंदा और नाराज था। दूसरे दिन वो शहर में घूम फिर रहा था तो इसने नाबीना सौदागर को देखा जो जेर लब गुनगुना रहा था, लेकिन निहायत खुशहाल दिखाई देता था। रजब ने इसका ताक़ुब किया जो मस्जिद की तरफ बढ़ रहा था। जब वहां पहुंचा तो गुज़श्ता रात की तरह अपना काम अंजाम देने लगा और इसका हाथ हथकड़े में पहुंच गया। जब उसने देखा कि थैली वहां नहीं है तो अपना हाथ पेशानी पर फेरा, लेकिन कुछ न कहा। इसने जेब से छोटी सी थैली निकाली और वहीं रखकर फर्श को हमवार कर दिया और दालान में आकर बैठ गया। रजब अपने दिल में कहने लगा, अगर वो उसी तरह वहीं बैठा रहा और सौदागर ने मुझे तलाश कर लिया तो क्या होगा? उसने अपने आप को तसल्ली दी और कहा, मैं ज़हर तक यहीं रहूंगा। जब लोग नमाज के लिए आएंगे और आमद वरफत शुरू होगी तो चला जाऊंगा। सौदागर गहरी सोच में डूबा था। उसके साथ ही अपनी जगह से उठा और थैली उठा कर चला गया। रजब अपने दिल में कहने लगा, अब तो साबित हो गया है कि ये रकम मेरे लिए नहीं भेजी गई, लेकिन अब तो जो होता था हो चुका है। जब ये सौदागर रोजाना इतनी रकम का मालिक बनता है तो उसे रकम की चंदन जरूरत भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो एक दिन इसकी रकम लुटा दूंगा और अपना हिसाब साफ कर लूंगा। अब रजब मुसाफिर था, इसलिए अगले दिन एक काफिले के हमराह अपने शहर लौट गया। इसने मुफ्त हासिल की हुई रकम तिजारत में लगा दी और फेरी में माल व असबाब बेचने लगा। जब इसका काम चल निकला तो एक दुकान ले ली और गंदुम की खरीद व फरोख्त करने लगा। इसकी तिजारत फलने फूलने लगी और बहुत जल्द मालदार बन गया। 2 साल के बाद काफिला के हमराह मक्का गया और हाजी रजब बन गया। अब उसने इरादा कर लिया कि सौदागर को तलाश करे और बे इजाजत ली हुई रकम वापस करे और इससे माफी मांग गए। उसी तरह जब 3 साल गुजर गए तो एक दिन इत्तेफाका जब वो अपने कामकाज के लिए जा रहा था, उसने देखा कि बाजार में वही नाबीना सौदागर खड़ा है और खामोशी से हाथ फैला रखा है। हाजी रजब दिल में कहने लगा, ये सौदागर मेरा मुहसिन कर्ज ख्वाह है और इस शहर का मेहमान है। मेरा फर्ज बनता है कि उसके हाथ पर कुछ रकम रख दूं और पूछूं कि जब से तुम्हारी रकम गुम हुई है तुम्हें कैसे हालात का सामना करना पड़ा है। अगर मैंने अपना कर्ज अभी उसे वापस कर दिया तो खुश होगा, मुमकिन है इसे रकम की जरूरत भी हो। हाजी रजब अपने आप से कहने लगा, जब लोग किसी के मकरूज होते हैं तो खुश नहीं रहते, लेकिन खुद पसंदी और गुरूर इन्हें मजबूर करते हैं और समझते हैं कि हमारे कर्ज ख्वाह को रकम की जरूरत नहीं है, इसलिए कर्ज की अदायगी में ताखीर करते हैं। बहरहाल हाजी रजब आगे बढ़ा और नाबीना के हाथ में एक सिक्का रख दिया और सोचने लगा, जब मैं उससे असल मौजू पर बात करूंगा तो लाजमी तौर पर खुश होगा और कहेगा, नहीं जनाब, मेरी रकम वापस नहीं मिली। अल्लाह ताला चोर पर लानत भेजे और इस कसम की दूसरी नफरतों का इजहार करेगा। इसके बाद पूछूंगा कि तुम्हारी रकम कितनी थी जो चराई गई है।
जब वो अपनी दास्तान बयान करेगा तो मैं भी कह दूंगा खूब, अब इसे लानत मलामत ना करो, शायद चोर का इल्म हो जाए। अगर चाहूँ तो तुम्हारे दिल की परेशानी दूर करने के लिए तैयार हूँ और उसी अंदाजा के मुताबिक तुम्हें रकम दे सकता हूँ। मुझे नेक दिल समझते हुए कबूल कर लो और मैं भी आसूदा खातिर हो जाऊंगा। हो हाजी रजब अपने ख्याल के मुताबिक शरी जुवाज ढूंढ रहा था, इसलिए सौदागर से पूछने लगा, मैंने सुना है चंद साल कबल तुम्हारी रकम गुम हो गई थी, क्या मिल गई थी? लेकिन सौदागर ने हाजी रजब के अंदाजा के मुताबिक गुफ्तगू न की और हाजी रजब की बातें सुनते ही इसका हाथ पकड़ लिया और फरियाद करते हुए कहने लगा, ए चोर, ए चोर, ए लोगों मेरी मदद करो, मैंने चोर तलाश कर लिया है, आओ मेरी मदद करो, उस शख्स ने मेरी रकम चराई है। सौदागर के शोर वाओगल से कई लोग जुमा हो गए और हाजी रजब परेशान होकर कहने लगा, है शरीफ आदमी, ख्वाह मखुआ क्यों तहिम्मत लगा रहे हो? मैं तुम्हारा हाल अहवाल पूछ रहा था, अगर वाकई तुम्हारी कोई चीज गुम हुई है तो मैं इसकी तलाफी के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम तो मुझ पर झूठा इल्जाम के निगार है हो। मैं तुम्हारी रकम के चोर को नहीं पहचानता, मैंने तो सिर्फ यही सुना था कि तुम्हारी रकम गुम हुई है, इसके अलावा मुझे किसी चीज का इल्म नहीं है। हाँ, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी रकम कितनी थी? लेकिन रोने धोने और चलाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्या तुम अपनी भलाई नहीं चाहते? सौदागर ने अपनी आवाज और भी बुलंद कर दी और कहा, मेरी रकम के चोर तुम हो। ए लोगों, मेरी मदद करो, मुझे रकम की चंदा जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इस बेइंसाफ चोर को काजी के यहाँ ले जाऊं और उसी से मदद मांगूं। सिपाही को बुलाओ, दारोगा को इत्तला दो, मुझे काजी की अदालत तक ले जाओ, जब तक मेरा मकसद हासिल नहीं हो ता इस चोर को मुआफ न करूंगा। इस दौरान कई लोग जुमा हो गए थे जो कह रहे थे, मुमकिन है इस सौदागर को शुबा हुआ हो, बहरहाल हकीकत मालूम हो जाएगी। इसके बाद हाजी रजब से कहने लगे, तुम फिक्र न करो, ये सौदागर इस शहर का बाशिंदा नहीं है, बल्कि मुसाफिर है और 2-3 दिन से यहाँ आया है, मुमकिन है उसे धोखे हुआ हो, इसलिए इसे ज्यादा परेशान न करो। अगर काजी के यहाँ जाओगे तो तुम्हें जमानत पर रहा कर दिया जाएगा। सिपाही और दारोगा को इत्तला दे दी गई। सिपाही आए और नाबीना सौदागर और हाजी रजब को दारोगा के पास ले गए। सौदागर ने कहा, 3 साल कबल मेरी रकम चराई गई है, अब मैंने चोर पकड़ लिया है और आपके सामने है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे काजी के यहाँ ले जाऊं और अपना मुकदमा साबित करूं। हाजी रजब कहने लगा, ख्वाह मखुआ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं चाहता था कि उसकी मदद करूं। राह मखुआ पर जा रहा इसलिए कि मैंने सुन रखा था कि इसकी रकम गुम हुई है। मेरी ख्वाहिश है कि महज अल्लाह ताला की रजा के लिए इसकी परेशानी दूर करूं। मुझे क्या मालूम था कि मुझसे उलझ पड़ेगा, तहिम्मत लगाएगा और मेरी इज्जत बर्बाद करेगा। इस शहर में मेरा अच्छा खासा कारोबार है, मुझे चोरी की क्या जरूरत है? बेहतर होगा कि काजी के पास जाएं। मुझे भी इस शख्स से शिकायत है, मसखरा बाजी नहीं है, क्या सौदागर की इमदाद करना गुनाह तो नहीं है? ख्वाह मखुआ के झगड़े या शोर शराबे से रकम नहीं मिल सकती। दारोगा ने मजबूर इन्हें काजी के पास भेज दिया। काजी ने दोनों की शिकायत और बयानात सुने और सौदागर से कहा, उस शख्स का हाथ छोड़ दो, मैं इसका जामिन हूँ, अब ये भाग नहीं सकता, मैं मामला की तहकीक करूंगा। जब मुद्दई और मुद्दा अलह अलग अलग हो गए तो काजी ने दोनों के बयानात अलहदगी में लिए। हाजी रजब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए और कहा, मैंने चंद बातें सुनी थी, इसलिए चाहा कि उसका तमाम वाकया दरियाफ्त करूं, अगर सच हुआ तो इसकी इमदाद करूं, लेकिन इस बेइंसाफ ने मुझे बेआबरू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए अपने किए से पशीमान हूँ। मुझे क्या मालूम था कि ये सौदागर ऐसी हरकत करेगा। काजी ने सौदागर से भी अलहदगी में दरियाफ्त किया और कहा, तुम्हारा ना बीना होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सौदागरी कोई अच्छा पेशा नहीं है। तुझे तो उस शख्स का ममनून होना चाहिए था कि ये तुम्हारी मदद करना चाहता था। अगर तेरी रकम चोरी हुई है तो इसका मुतालबा कर सकते हो, लेकिन बगैर सबूत ऐसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें कैसे मालूम है कि तेरी रकम का चोर यही शख्स है? सौदागर ने कहा, जनाब, मेरे पास पूरा सबूत और दलील मौजूद है। मुझे मालूम है कि जो शख्स बुरा काम करता है, चाहे वो कितना ही बेइंसाफ क्यों ना हो, वो ज़हनी और दिली तौर पर परेशान रहता है, बल्कि ऐसा शख्स अपनी ज़ात से भी शर्मिंदा होता है और चारों चार हाथ पांव मारता है ताकि खौफ और डर से रिहाई हासिल करे। इस तरह वो अपने आप को धोखा देता है।
लेकिन अक्सर औकात इसकी सोच इसके लिए बाइस बदनामी बन जाती है। सौदागर ने कहा, जब मेरी रकम गुम हुई थी मैंने इरादा कर लिया था कि किसी से जिक्र न करूंगा, इसलिए एक राज की तरह अपने दिल में छुपाए रखा। मैं जानता था कि ये राज मेरे और चोर के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता, इसलिए अगर किसी ने इस मौजू की तरफ इशारा भी कर दिया तो खुद वही चोर होगा। मैं हर वक्त लोगों को दुआएं देता हूं ताकि अल्लाह ताला मेरी रकम की हिफाजत करे। इस तरतीब से चोर भी समझता था कि शायद लोगों को चोर का इल्म हो जाए, और मैं भी नतीजा और अंजाम का मुंतजिर रहा। अगर ये शख्स चोर नहीं है तो उसे कैसे मालूम है कि मेरी रकम चराई गई है, हालांकि मैंने आज तक किसी से जिक्र नहीं किया है। काजी ने कहा, बहुत उम्दा दलील है। इसके बाद हाजी रजब को अलीहदगी में बुलाया और कहा, तुमने किससे सुना था कि इस सौदागर की रकम गुम हुई है? हाजी रजब ने कहा, मुझे दुरुस्त याद नहीं है, अलबत्ता कई लोग कह रहे थे कि इसकी रकम गुम हुई है, बल्कि इसने खुद भी आपको बताया है। काजी ने कहा, हाँ, इसने खुद आज बताया है, लेकिन उससे पहले किसी से जिक्र नहीं किया था। अगर तुम्हें याद हो कि जिस शख्स ने तुझे ये वाकया बताया है तो इसकी निशानदही कर दो, इसके बाद तुमसे हमारा कोई वासिता ना होगा। इस सूरत में हम तुझसे माफी मांगेंगे और बाजार में भी मुनादी करा देंगे कि सौदागर को शुबा हुआ था। इस तरह तुम्हारी इज्जत महफूज रहेगी। हाजी रजब ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, इसलिए कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कहां से सुना था। काजी ने कहा, इस तरह तुम पर इल्जाम साबित हो सकता है। अब उसके हल की दो सूरतें हैं, या तो तुझे नजर बंद रखा जाए ताकि मामला साफ हो सके, लेकिन तुम्हारी नजर बंदी से शोर वाओ गौगा हर तरफ फैल जाएगा, जो तुम्हारे लिए बाइस बदनामी होगा। हाँ, एक दूसरी सूरत भी है कि तुम जो कुछ जानते हो इसका इतराफ करो और हमें चोर का उता पता बता दो, ताकि हम मामला की तह तक पहुंच सकें और रकम भी इसके मालिक को वापस मिल जाए। बहरहाल तुम्हारी बेहतरी उसी में है कि चोर की तलाश में हमारी मदद करो। हाजी रजब ने कुछ सोचा और काजी से कहा, मैं देख रहा हूँ कि काम मुश्किल बनता जा रहा है। अब जबकि मामला यहाँ तक पहुँच गया है तो सच्चाई से बेहतर कोई चीज नहीं है। मेरी जिंदगी की दास्तान ये है कि मैंने मस्जिद से इस दिन रकम उठा ली थी, इसलिए कि मैं अपने आप को मुस्तहिक समझता था और समझता था कि रकम कर्ज के तौर पर ली है। आज भी मेरा इरादा भलाई का था और चाहता था कि अपने फेल की तलाफी करूं और हलाल करूं, लेकिन मुझे इतना मालूम ना था कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब आप जो हुक्म दें मुझे मंजूर है। सौदागर की रकम 1300 दीनार थी, अब मैं 1500 दीनार देने के लिए तैयार हूँ ताकि मामला दब जाए और मेरी इज्जत भी बची रहे। काजी ने कहा, बारक अल्लाह, हमेशा निजात सच्चाई में होती है। अब अपनी बात मुख्तसर करो, इसलिए कि हमारे भी कई काम हैं। हाजी रजब से 1500 दीनार लिए गए ताकि सौदागर को दे जाए, लेकिन सौदागर कहने लगा, यहाँ तक तो काम दुरुस्त हो गया है। इन्होंने कहा, बहुत खूब, ये रकम ले लो और यहाँ दस्तखत कर दो या अंगूठा लगा दो। सौदागर ने कहा, ये रकम मेरा माल है, लेकिन इस मामला में मुझे बहुत तकलीफ पहुंची है, इसलिए जरूरी है कि तमाम कज़िया लिखा जाए कि उस शख्स ने फलां तारीख को मेरी रकम चराई है और अब वापस दे दी है, ताकि इस बेइंसाफ चोर को आपके सामने शर्मिंदगी उठाना पड़े और तमाम हाजिरीन इस पर दस्तखत भी करें। काजी ने कहा, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन अब जबकि तुमने रकम ले ली है तुम्हें हक नहीं पहुंचता कि यहाँ से बाहर जाकर लोगों से कहते फरू और हाजी रजब को बदनाम करो। सौदागर ने कबूल कर लिया कि मैं किसी से जिक्र न करूंगा, इसलिए तमाम वाकयात लिखे गए, रकम के सौदागर को दी गई और सब लोग चले गए। हाजी रजब ने भी सिक्का सांस लिया और अपने दिल में कहने लगा, बहुत बुरा मामला हुआ है, लेकिन अब आसूदा हो गया हूँ। लेकिन दूसरे दिन सौदागर फिर काजी की अदालत में खिड़लिफ था और अपनी शिकायत बयान कर रहा था। वो कहता था, चोर को बुलाया जाए। इससे पूछा गया, उसे शरीफ इंसान, अब तो मुकदमा का फैसला हो गया है। सौदागर ने कहा, हाजी रजब इस बात को तस्लीम करता है कि इसने 3 साल कबल रकम चराई थी और अब वापस की है, इसलिए कज़िया खत्म नहीं हुआ। मैंने इसे कर्ज हसना नहीं दिया था, मैं इस रकम से गंदुम खरीदना चाहता था, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ है कि 3 साल कबल के मुकाबला में गंदुम की कीमत दुगनी हो गई है। मैं 3 साल कबल 1300 मन गंदुम खरीद सकता था, लेकिन अब इस रकम में 650 मन गंदुम मिल सकती है। इसलिए हाजी रजब को ये खसारा पूरा करना चाहे उगरना में भी अपना कौल वापस लेता हूँ और बाजार जाकर हाजी रजब से मामला खुद तय करता हूँ। काजी ने कहा,
मेरे ख्याल के मुताबिक तुमने रजामंदी जाहिर कर दी है और मुकदमा का फैसला हो चुका है। अगर तुम जिद करते हो तो उसे बदला लेते हैं, ताहम ख्वाह मखुआ झगड़ा मोल लेने में कोई फायदा नहीं है। सौदागर ने कहा, मैंने असल ज़र वसूल कर लिया है और रसीद भी दे दी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक गाय का सर मटके में फंसा हुआ है। हाजी रजब आया और कहने लगा कि ये शख्स अब क्या कहता है। इन्होंने कहा, ये कहता है मैंने ये रकम गंदुम की खरीद के लिए जमा की थी, लेकिन अब गंदुम की कीमत दोगुनी हो गई है। हाजी रजब बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, मैं इज्जतदार शख्स हूँ और एक आम सौदागर से उलझना नहीं चाहता। चलो इसका ये मुतालबा भी तस्लीम कर लेते हैं। वो रकम मुझे वापस दे दे और 1300 मन गंदुम लेकर चला जाए। गंदुम की बार बर्दारी का किराया भी मैं अदा कर दूंगा ताकि अपने शहर ले जाए। सौदागर ने कहा, मैं किसी चोरे कोई जिन्स नहीं खरीदता और अपनी हलाल रकम हराम नहीं करता। मैं अपना खसारा नकदी की सूरत में पूरा करूंगा और समझूंगा कि अपना हक ले लिया है। हाजी रजब बहुत परेशान था, लेकिन रसोई की रोकथाम भी जरूरी समझता था, इसलिए कहने लगा, आओ बाबा, ये 1300 दीनार मजीद ले लो। अब जाओ और हाजी रजब के हक में दुआ करो। दोनों ने खुशी का सांस लिया और चले गए। दूसरे दिन सुबह नाबीना सौदागर फिर काजी की अदालत में आ गया और कहने लगा, मुझे रकम मिल गई है, इसलिए चाहता हूँ कि गंदुम खरीदूं। काजी ने कहा, हाँ, शौक से खरीदवाओ, लेकिन यहाँ किस लिए आए हो? सौदागर ने कहा, मुझे हाजी रजब से शिकायत है। काजी ने कहा, तुझे अब कौन सी शिकायत है? तुमने तो खेल तमाशा बना लिया है और रोजाना नया मुकदमा दायर कर देते हो। मुकदमा का फैसला हो चुका है, अब तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि हाजी रजब की जात से नाजायज फायदा उठाओ। वो शरीफ इंसान है, इसलिए उसने तुझे दुगनी रकम दे दी है। हाँ, अब क्या कहना चाहते हो? सौदागर ने कहा, हाजी रजब ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और मुझे दुगनी रकम दे दी है, और आपके कौल के मुताबिक वो शरीफ और अच्छा इंसान भी है, लेकिन क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मुझे हक नहीं पहुँचता कि आसूदगी से जिंदगी बसर करूँ? क्या मेरी पेशानी पर लिखा है कि हमेशा सौदागरी करूँ? क्या मैं गंदुम की खरीद व फरोख्त न करूँ और इज्जत से जिंदगी बसर करूँ ताकि अच्छा इंसान बनूँ? इसे कहा गया, क्यों नहीं, तुम्हें भी हक हासिल है। हम भी चाहते हैं कि तुझे यही बातें कहीं कि सौदागरी नामुनासिब और गैर शरई पेशा है। इससे सिवाय सुनती और बेशर्मी के कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सेहतमंद लोगों को इस पेशे से जुर्माना भी किया जाता है। हाँ, तुझे अपनी रकम मिल गई है, जाओ और अपने काम में लग जाओ और सौदागरी ना करो। अब हाजी रजब से तुम्हें क्या लेना है? सौदागर ने कहा, यही हाजी रजब मेरी बदबख्ती का सबब बना है। मैं 3 साल कबल चाहता था कि सौदागरी से अपना हाथ खींच लूं और गंदुम फरोशी करूं, लेकिन ये बेइंसाफ चोर मेरी जुमा पूंजी ले गया, इसलिए मुझे मजबूर मजीद 3 साल सौदागरी करना पड़ी। इस दौरान कई तकालीफ का सामना करता रहा और चोर की गिरफ्तारी की फिक्र में मुब्तला रहा। हाँ जनाब काजी, मैं 3 साल तमाम लोगों से बदजन रहा। इस तरह मेरी उम्र के 3 कीमती साल तबाह हो गए हैं। मैंने हाजी रजब से कोई बुराई नहीं की, लेकिन उसने तो मुझसे बुराई की है। बेशक उसने मेरी रकम लुटा दी है, लेकिन मेरी उम्र के 3 साल नहीं लौटाए। मेरे 3 सालों की परेशानी की तलाफी नहीं की। इसने मेरे 3 सालों की बेख्वाबी और परेशान हाली का कोई इलाज नहीं किया, बल्कि 3 साल की सौदागरी का बोझ मेरी गर्दन पर डाल दिया कि जनाब काजी, अब मैं अपने 3 सालों के गैर माकूल और गैर शरई कामों के जुर्माना का दावा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये खसारा पूरा किया जाए और ये खसारा हाजी रजब अदा करे, या मेरी उम्र के 3 साल मुझे लुटा दे। काजी और उसके साथी बनने लगे और हाजी रजब को हाजिर होने का हुक्म दिया। काजी और इसके साथियों ने हाजी रजब से कहा, देखो सौदागर की बातें तुम्हारे ख्याल में दुरुस्त हैं या नहीं? हाजी रजब को एक तरफ अपनी इज्जत का खतरा महसूस हो रहा था और दूसरी तरफ जवाब देने के लिए इसके पास अल्फाज न थे, इसलिए मजबूरा कहने लगा, सौदागर की बातें दुरुस्त हैं। ले सौदागर से कहने लगा, जनाब मोहतरम, छिलके और खाल उतार कर साफ साफ कहो कि अब कितनी रकम के एवज अपनी रजामंदी का इजहार करोगे ताकि मेरा पीछा ना करो और अपने काम में मशगूल हो जाओ। सौदागर ने कहा, तूने मेरी रकम चराई और मुझे सिवाय सौदागर के कहीं का न छोड़ा, बल्कि तुम इस रकम की बदौलत इस मर्तबा पर पहुंच गए। अगर तुम सच पूछते हो तो सरमाया मेरा था और काम तुमने किया। अगर तुम्हारा असासा आधा आधा बांट लें तो मैं
भी तुम्हारी तरह मालदार बन सकता हूँ। हाजी रजब ने कहा, अब तुम खुद ही देख रहे हो कि कितने बेइंसाफ इंसान हो। सौदागर ने कहा, बेइंसाफ तो तुम खुद हो कि एक नाबीना सौदागर की रकम चरा ली। मैं इस दिन तुम्हारे लिए रहमत का फरिश्ता था, लेकिन अब अजाब का फरिश्ता हूँ। अगर तूने इस दिन बुराई ना की होती तो आज गिरफ्तार ना होते। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी बात की तरदीद को दुआओ, गिरना मेरा हक अदा करो। या फिर अब भी हो सकता है कि मेरी जिंदगी के 3 साल मुझे लूटा दो ताकि जवान तरीन कर अपने काम काज के लिए जाऊं और अपनी रकम से तिजारत करूं। हाजी रजब निहायत परेशान था कि इस बदमिजाज सौदागर से क्या कहे। इसने कुछ सोचा और कहा, मैंने जिस दिन तुम्हारी रकम उठाई थी मैं तुझसे भी ज्यादा बेयार व मददगार और मुस्तहिक था। मेरी रकम काफिला सराय में चरा ली गई थी जो 1300 दिनार थी, इसलिए इस हादिसा ने मुझे इस काम पर मजबूर कर दिया और तुम्हारी रकम बतौर कर्ज ले ली। लेकिन अब तुम्हारी बातें दुरुस्त नहीं हैं। मैं तुम्हें जो उन नहीं बना सकता और न ही अपना निस्फ सरमाया तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। अगर मैंने उस दिन बुराई की है तो तुम आज बुराई कर रहे हो। हाँ, मैं अपनी बुराई से पशीमान हूँ, इसलिए तुम भी बेइंसाफी न कर। अलबत्ता मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि तुम्हारी खुशहाली के लिए हमारे पास जो कुछ मौजूद है एक दूसरे के ऊपर रख दें और शिराकत में काम शुरू कर दें। तूने सौदागरी की है और मैंने चोरी की है। हम दोनों का काम एक दूसरे से मिलता जुलता है। शायद तुम अकेले गंदुम फरोशी ना कर सकोगे, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर हम दोनों अच्छे इंसान बनकर रहें तो हमारी खूब गुजरेगी। हाँ, ये तो तुमने नहीं बताया कि तुम्हारा नाम क्या है। सौदागर ने कहा, शबान। हाजी रजब ने कहा, बहुत खूब, मैं रजब हूँ। हमारे पास जो कुछ है इकट्ठा मिला लेते हैं और अपना तिजारती नाम रजब और शबान गंदुम फरोश रख लेते हैं। कि आप राजी हो? सौदागर ने कहा, अब एक चीज बाकी रह गई है। मेरी कुछ रकम रमजान के पास है, अगर उसे भी अपने हमराह शामिल कर लें और तीनों हम नवाला और हम प्याला बिन जाएं तो खूब गुजरेगी, बल्कि रमजान का काम भी चल पड़ेगा। उसने भी बड़ी सख्तियां बर्दाश्त की हैं। रजब ने पूछा, ये रमजान कौन है? सौदागर ने कहा, रमजान वही शख्स है जिसने तुम्हारी रकम और गटरे काफिला सराय में चराई थी, बल्कि उसने भी तुम्हारे ख्याल के मुताबिक वो रकम बतौर कर्ज ली थी। चूंकि रमजान मेरा वाकिफकार था, इसने इस बदात मुझे तमाम वाकया बता दिया था और मुझे इसकी रास्त गोई बहुत पसंद आई, लेकिन मैं ने अपनी रकम के गुम होने की दास्तान किसी से नहीं बताई थी। अलबत्ता कुछ अरसा तक मस्जिद के खादिम से बदजन रहा और कई मर्तबा इसका इम्तिहान भी लिया, लेकिन इसका कोई गुनाह साबित न हुआ। मैंने उसके बाद भी कई मर्तबा अपनी रकम वहां रखी, लेकिन तुम न हुई, इसलिए समझ गया ये इसका काम नहीं है। अब रमजान भी इस शहर में मौजूद है, उसने भी तुम्हारी रकम अलग रखी है और इस शहर में तुम्हारी तलाश में आया है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि रमजान तुझसे बेहतर है कि तुमने मेरी तलाश में एक कदम भी नहीं उठाया। मैं भी इसके हमराह इसलिए आया था कि खुदा करे अपनी थैली तलाश कर लूं। अब जबकि तूने काफिला सराय में अपने असासा के गुम होने का बताया तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि दरवाजा के तख्ते किस खूबसूरती से आपस में जुड़े हुए हैं। उसी तरह हम 3 अफराद भी इकट्ठे मिलकर खाएंगे, पिएंगे और तिजारत करेंगे। हाजी रजब ने कुछ सोचा और कहा, अच्छी तजवीज़ है। मैंने अपनी रकम उसे बख्श दी है। अब आओ ताकि रमजान के पास चलें। जब दोनों रमजान के पास पहुंचे तो रजब ने देखा कि ये रमजान तो वही शख्स है जो परदेसे में मेरे हमराह रहता था, लेकिन वहां उसने अपना नाम तब्दील कर रखा था। तीनों अफराद अपनी गुज़श्ता रसोई, पशीमानी और बेसरू सामानी के बावजूद सर जोड़कर बैठ गए और कहने लगे, अब गुज़श्ता वाक़यात को भूल जाएं और बेहतर काम करें। इन्होंने अपना सरमाया एक दूसरे पर रख दिया और गल्ला की बड़ी दुकान बना ली जिस पर लिख दिया। ऐसी तरह की वीडियो और वकिया को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आमीन या रब्बल आलमीन।